Assalamu alaikum, students. Uh, we are starting our IoT DL class, and we will be continuing our discussion on NumPy. If you have any questions up till now about NumPy, what we have learned, you can ask at this stage if there is anything which is not clear about Python or NumPy, even till this stage. Okay, no problems, no questions. All right. So we continue with our NumPy, the most important library which we need for IoT as well as deep learning from Python libraries. Okay. All right. Then okay, last time, our next slide in that sequence after completing the arithmetic operations. This was the slide we were looking at when we finished the lecture. It was about the universal functions, this slide. Uh, all these mathematical functions which are in NumPy, it provides those sine, cos, exponent, etc. The NumPy calls them universal function, and the abbreviation used is ufunc for universal function. All these functions, they operate element wise on an array, as we saw earlier also. They work element wise, these functions. So here is a just example of using of those universal functions. If you had an array B generated by the using the NumPy package np dot array range 3, which means 0, 1, 2. So B, if you now enter B and make enter, so it will show you that this is what has been generated by this command. Then, as we saw earlier, you can use these arrays and matrices as just like the variables on which we apply the operations, different operations or functions in the level. You know earlier how to take e of x, where x was a variable and maybe an integer, and you could take e of x. But now we are talking of taking e of an exponent of a vector b, which is this. And as the rule is, when we apply a function, it automatically means apply it on the whole array element wise. तो b को आप कहोगे e power 0, which is this, e power 1, which is this, e power 2, which is this. So just by saying this, you apply it on the whole array, element wise. Similarly, if you say dot square root b, again you are telling apply it on all the array, under root thing. So under root 0, under root 1, under root 2, you will have 0, 1, and 1.4. You could say, you could make C as an array of these values, and then you could use add function for adding these two arrays, and just by saying that, it means element-wise addition of the two things. A, this was B and this is C. B, 0 plus 2, 1 plus minus 1, and 2 plus 4. You will get that result. Adding of two arrays and two matrices or n-dimensional matrices, equally applicable.
we saw somewhat of indexing uh, in a lot of indexing, in fact, and slicing in Python. Uh, NumPy supports those facilities along with some additional things. A lot of that is which we learned in lists, but quite a few additional things which will we see. Okay, first seeing the basics, that you have an array which is generated as array range 10 from 0 to 9, that generates an array. While generating, also you can apply a function, like he applied a function of taking power of 3, taking cube, while generating array range 10. So it will make an array from 0 to 9 and apply this function, take the power 3, take the cube of that array, which means each element of array. If you now see what is A now, it is this array: 0 cube, 1 cube, 2 cube, 3 cube, 4 cube, 5 cube, 6 cube, 7 cube. So it made an array 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, and it took element wise cube of each element and generated this array. Simplest way of indexing traditionally we know from C. You name the array, you give the index, and you get the component. In this case, if you say A2, you get this. Okay. You can have the slicing of the available array by using their same slicing rules as we saw in list case of Python. So you say array, start index, last index not inclusive. ये वाला इंडेक्स शामिल नहीं होगा. तो फ्रॉम 2, 3 and 4, इंडेक्स 2 and 3 and 4 के का स्लाइस आप लेंगे. तो 0, 1, 2, 3 and 4 ये आपने स्लाइस लिया. It also allows, as we have seen even earlier, that while taking the slice, you could also define the step. Like उसी अरे को हम अगर कहें यहाँ एम्प्टी छोड़ा है, कुछ ना मेंशन किया जाए, तो ये स्टार्ट इंडेक्स है, तो कुछ ना मेंशन हो तो बाय डिफॉल्ट 0 होगा. ये एंड इंडेक्स है जो दिया हुआ है, ये इंक्लूसिव नहीं होता, और ये स्टेप है. अच्छा, यहाँ एक तो ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है, स्लाइसिंग विद स्टेप and also using start index अगर नहीं है तो 0, तो it is 0, 6, 2. लेकिन इसके अलावा कि आप 0, 6, 2 करते तो 0, 6, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 है, 0 से 5 तक लेते और स्टेप ऑफ 2 लेते, तो इसका स्लाइस ये बन जाता. ये 0 है, ओके, और स्टेप 2 करके आप यहाँ आते, फिर स्टेप 2 करके आप यहाँ आते, और फिर स्टेप 2 करके आपने जो जाना है वो यहाँ आना था. मगर आप देखें कि आपका रेंज ख़त्म होती है 5 पे. 0, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ आपकी रेंज ख़त्म हो जाती है. तो ये वाला आपका नहीं शामिल होगा, ये एलिमेंट शामिल होंगे. अच्छा, ये तो खाली होता अगर आप इसके इस स्लाइस को प्रिंट करते जैसे आपने यहाँ किया था. मगर अब हम इसमें एक और हम कह रहे हैं कि वाइल स्लाइसिंग एंड स्टेपिंग एंड समथिंग के तहत आप डिफाइन करें, यू मे नॉट ओनली जस्ट रीड इट, यू कैन राइट इट ऑन दोज लोकेशंस. दोनों चीज़ें अलाउड है. यहाँ आपने रीड किया है उस लोकेशंस पे स्लाइस को, यहाँ स्लाइस विद स्टेप वाली चीज़ पर इन लोकेशंस पर राइट कर सकते हैं. तो आपने कहा मैं आई वांट टू राइट 1000 ऑन दिस स्लाइस फ्रॉम 0 to 6 while taking step of 2. जो मैंने अभी आइडेंटिफाई किए थे वो ये थे. इस कैटेगरी में जो चीज़ें आ रही थी वो एक ये था, एक 0, फिर ये 2, फिर ये 4,
और फिर ये 5 तक आपके पास गुंजाइश थी, तो सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स अगर आप प्रिंट करते तो ये प्रिंट हो जाते, मगर आपको उसने कहा मैं 1000 प्लेस करना चाहता हूँ एज पर दिस रूल, तो अब इस जगह 1000 प्लेस हो जाएगा, इस जगह 1000 प्लेस हो जाएगा, इस जगह 1000 प्लेस हो जाएगा उसी अरे में। अच्छा, ये उसका क्योंकि स्लाइस है ए के अंदर, इन लोकेशंस पर आपने ये लिखा, तो अब ये, अब अगर आप ए को प्रिंट करें तो यहाँ वही देखिए 0 पे, 2 पे, 4 पे वैल्यू लिखी गई और बाकी वही रहा। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो ये आप इसके जरिए से इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप एक अरे देते हैं जो कि अब ये है ए, और इसके यहाँ स्टार्ट और एंड में कुछ ना देने का मतलब है, यानी स्टार्ट पे कुछ ना देने का मतलब 0, एंड पे कुछ ना देने का मतलब है फुल, लास्ट जो भी इसका साइज है वो, इसका साइज था 10, तो इसका साइज 10 यहाँ आ जाएगा, या विच मीन्स ऑल द एलिमेंट्स। अब अगर यहाँ ये -1 हो रहा है स्टेपिंग, तो ये इस अरेंजमेंट में ये रिवर्स हो जाएगी, ये -1 से हर एक स्टेप बैक, स्टेप बैक, स्टेप, हर दफा स्टेप इज माइनस, तो यही अरे अगर इस अरेंजमेंट में हम लिखें तो इट विल बिकम दिस। तो फॉर रिवर्सिंग ऑफ एन अरे दिस इज ए वन वे। अब ये जो अरे आपके पास अभी है लास्ट में, नहीं लास्ट में, ये तो आपने ए पे ये अप्लाई किया, ओके, ए आपका ये है, ए की आपकी पोजीशन ये है, ये आपने इस पे रिवर्स के फंक्शन को अप्लाई किया, मगर ए में आपने उसको स्टोर नहीं किया, आप ये जो ओरिजिनल आपका ये ए अभी इस स्टेज पर है, ये जो ए आपका था, इस पर आप ये अप्लाई कर रहे हो, फॉर आई इन ए प्रिंट आई की पावर 1/3 क्यूब रूट, ये और इन फ्लोटिंग पॉइंट 3.0 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 1/3 पावर लेने का मतलब आप एक लिहाज से क्यूब रूट ले रहे हो उस अरे का, जो ये कि ए है, इस अरे का क्यूब रूट लेना। अरे का क्यूब रूट मैंने बताया, इसका मतलब है कि हर एलिमेंट का क्यूब रूट, तो पहले एलिमेंट का क्यूब रूट ये आ गया, ये 9.999 होगा, कंप्यूटेशनल पावर ऑफ 1/3 निकालेंगे, तो इट इज 1000 का क्यूब रूट 10 होना चाहिए, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के 9.999999998 इट्स ऑलमोस्ट 10, सो ये 10, क्योंकि आप फ्लोटिंग पॉइंट उसमें कर रहे हैं, ये 1, इसका क्यूब रूट 1, 1000 का फिर अगेन दिस 9, 27 का 3, फिर 1000 का 9.99 10, फिर 125 का 125 का 5, ये रहा 5, 4.999, और फिर इसी तरह जो वहाँ नंबर्स थे जिनके लिए गए थे उसी के क्लोज फ्लोटिंग पॉइंट उसमें इनके आंसर आ रहे हैं। आप इस तरह ये कर सकते हैं अप्लाई फॉर लूप के जरिए। ओके, अच्छा, यही कंटिन्यू विद स्लाइसिंग एंड ऑल दैट विद मोर डायमेंशन, तो इसको अभी हम यहाँ पहले ऊपर वाला फंक्शन पर है, इसको लास्ट में हम देखेंगे, पहले सिंपल वाले केसेस देख लें। इसमें इंडेक्सिंग इस तरह करते हैं, यानी फर्स्ट इंडेक्स एंड सेकंड इंडेक्स, रो का और कॉलम का, नॉट के वो जिस तरह हम सी में थे डबल इंडेक्स देते थे, डी और 2 लिखते थे ब्रैकेट क्लोज, फिर 3 लिखते थे, उस तरह नहीं, इसमें हम इंडेक्स इस तरह देते हैं। सो बी, अगर ये बी है और इसका B2 ठीक चाहिए, तो इधर रो में
0 1 2 और कॉलम में 0 1 2 3, तो ये इसको पॉइंट करेगा। रीड करना है तो ये रीड कर देगा, इस जगह राइट करना है तो वो राइट कर देगा, क्योंकि अरे जो है वो हमेशा म्यूटेबल चीज है। दूसरे केस में ये बी को कह रहा है कि मैं पहला इंडेक्स, अच्छा देखिए इसमें इंडेक्सिंग में स्लाइसिंग अलाउड है, हमने पहले भी देखा है। फर्स्ट इंडेक्स इज द होल रेंज फ्रॉम 0 to 5, of course 5 not inclusive, and second index is constantly 1। एक्चुअली इसका मतलब है 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1, इसका ये मतलब है। तो अगर हम देखें 0 1 जीरो रो और फर्स्ट कॉलम ये आ गया, फिर यहाँ 1 के साथ 1 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये आ गया। इसी तरह यहाँ के 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 21, और इस तरह हम ये टिल 4, 5 इंक्लूसिव नहीं होता, टिल 4 कह सकते हैं, 0 1 2 3 4 1, ये 41 इसमें। ओके, तो हम इंडेक्सिंग में ये स्लाइसिंग इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके लिए एब्रीवेटेड सॉल्यूशन है। मल्टी डायमेंशनल केसेस में भी यह किया जा सकता है। ये अब एक और तरीका, बी के साथ कॉलन के दोनों साइडें खाली छोड़ दी, कॉमा, ये पहला इंडेक्स है, ये दूसरा इंडेक्स है। दूसरा इंडेक्स फिक्स्ड है 1, पहले इंडेक्स में वेरिएशन है, उसकी रेंज स्टार्ट और एंड की दी हुई ना हो, तो इसका मतलब है जो भी स्टार्ट का मिनिमम है यानी 0, और जो भी उस पहले इंडेक्स का मैक्सिमम है वो, तो कंप्लीट पहला इंडेक्स 0 1 2 3 4, तो यहाँ 0 5 समझा जाएगा, और उसके बाद इट विल बी टेकन फ्रॉम 0 to 4, यहाँ 0 5 लिखा हुआ एस्यूम किया जाएगा, विच मीन्स इट हैज बिकम सेम। इस केस में भी पूरी रेंज दी हुई थी, तो दिस एंड दिस इन दिस केस रिजल्ट विल गिव यू द सेम रिजल्ट। Not mentioning is mentioning the whole, take the whole in that dimension, everything उस डायमेंशन में कंप्लीट डायमेंशन को कंसीडर करना। अब इसमें ये सब सेक्शन भी हो सकता है, जैसे पहले हिस्से में, अभी यहाँ भी हमने हेलो और, तो अभी इसमें फिर पार्शियल भी हो सकता है 1 से 3, यानी 0 छोड़ दिया, 1 and 2, 3 is the upper not included, 1 और 2 लिए जाएंगे, और दूसरा इंडेक्स कंप्लीट है सारा, सो पहले इंडेक्स के ये 1 और 2 लेंगे और दूसरे के तमाम, यानी इसके 1 के साथ दूसरे के ऑल, इसके 2 के साथ दूसरे के ऑल, तो ये इसका पोर्शन जो है वो यहाँ अपियर होगा इसके जवाब में। ये फर्स्ट इंडेक्स कैन बी 1 एंड दिस कंप्लीट, देन दिस कैन बी 2 दिस कंप्लीट, तो ये 2 बन गए। ओके, तो ये यूजेज ऑफ स्लाइसिंग in multi-dimensional indexing. Oh, now we come in the end to this. ये थोड़ा सा कि using this kind of things for a function भी support है, कर सकते हैं। उसके लिए ये वर्ड है from function, ये इसका कीवर्ड, ये फंक्शन नेम नहीं है, from function is the keyword, np dot from function, आप ये इस पैरामीटर्स पर अप्लाई करेंगे और इसमें स्टोर करेंगे। यहाँ पे फंक्शन का नेम आता है, कौन सी फंक्शन पे, तो वो इस केस में ये फंक्शन आपने ऊपर लिखी हुई थी कहीं, डिफाइन की हुई है, इसका नाम आपने एफ रखा हुआ है, तो ये एफ। ये जो मैट्रिक्स आप बनाएंगे इससे, ये फंक्शन अप्लाई करके, उसकी ये डायमेंशन है 5/4, 5/4 की एक मैट्रिक्स बनेगी। उसके अंदर जो डेटा टाइप्स हैं वो इंटीजर हैं,
इन पैरामीटर्स के साथ फ्रॉम फंक्शन का मेथड आप कॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली अब आप इस फंक्शन में ये फंक्शन अप्लाई होगी एक्स वाई पे और आप ये कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, तो आप पहले ये रो, अब ये एक्स वाई इसके रो कॉलम नंबर है, ये रो नंबर और कॉलम नंबर, एक्स और वाई रो एंड कॉलम नंबर। तो सबसे पहले रो जीरो आप लेंगे जब, तो एक्स जीरो होगा, ये चीज जीरो हो जाएगी और कॉलम के नंबर 0 1 2 3 के हिसाब से चीजें कैलकुलेट होगी। 0 प्लस कॉलम नंबर 0, 0 + 1, 0 + 2, 0 + 3, तो ये बन जाएगा फर्स्ट। फिर आपका रो नंबर चेंज हो जाएगा, 0 से 1 हो गया, यहाँ पे 10 आ जाएगा, उस 10 के साथ 0 ऐड करना 1 का, तो 10 0 ऐड करके 10 1 ऐड करके 10 2 ऐड करके 10 3 ऐड, और इस तरह आप तमाम रोज एज पर दिस 0 से लेकर 4 रो तक जाएंगे। आप हर दफा 10 से मल्टीप्लाई करके आपका पहला एलिमेंट बन जाएगा जिसमें 0 ऐड होता है कॉलम का, और उस पर फिर ये इंक्रीज होता जाएगा जैसे कि इस फंक्शन में। इस फंक्शन के तहत आपने इस डायमेंशन की एक अरे बना ली, और इसके लिए ये है फ्रॉम फंक्शन, यहाँ फंक्शन का नेम इस्तेमाल किया, तो ये भी सपोर्टेड है इन नंबर। ओके, अब हम जब ये कह रहे हैं कि हमारे अगर आप फ्यूअर इंडेक्सेस प्रोवाइड करें, जितने नंबर ऑफ एक्सेस हैं उससे कम प्रोवाइड करें, तो वो जो मिसिंग इंडेक्स हैं उन्हें कंप्लीट स्लाइस समझा जाता है। जैसे अभी हम एम्प्टी छोड़ देते थे तो वो पूरा उसको अस्यूम करता था, वो वाला केस समझा जाएगा। यानी अगर आप बी, आपकी बी थी, बी कहाँ है, ये बी आपका एक 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है, इसके हम हर जगह ये दो वो देते हैं। ठीक है, अब अगर इसके 2 डायमेंशन है और आपने सिर्फ एक मेंशन किया, यहाँ असल में कॉमे के बाद दूसरा मेंशन करना था, लेकिन आपने बाकी को मेंशन नहीं किया। फर्स्ट को ये 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन थी, आपने एक डायमेंशन मेंशन कर दिया, तो वो डायमेंशन के आगे जो दूसरी डायमेंशन है जो मिसिंग है उनके बारे में वो लेगा कंप्लीट। व्हाट इट मींस इज कि ये चीज विल बी इक्विवेलेंट टू, पहली डायमेंशन तो है गिवन है -1, दूसरी नहीं गिवन का मतलब है ये कॉलन with both ends empty from 0 to whatever is the maximum for the second dimension। तो सेकंड डायमेंशन के लिए मैक्सिमम क्या है, हमारा सेकंड डायमेंशन है ये, तो इसके 4 एलिमेंट्स हैं, तो 0 1 2 3, तो वहाँ 4 लिखोगे। एक्चुअली इसका मतलब है यहाँ कि यहाँ जो कॉलम का मतलब है 0 से 4 तक, इसका मतलब ऑल, ये का मतलब है। तो 0 1 2 3 -1 और इसके साथ 0। तो अगर इसको आप प्रिंट करते हैं तो ये आएगा। -1 का क्या मतलब है, रो में, रो वाली डायमेंशन में -1 जो हमारा असूल है, ये है 0 1 2 3 4, ये रो का, इसमें लास्ट रो ये है। तो माइनस में अगर गिनना शुरू करेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, रो के लिए काउंट अगर इंडेक्स को आप कहेंगे तो ये होगा -1 उसने कहा है ये रो -1 लो और कॉलम में ऑल एलिमेंट्स, तो ये पूरी रो बन जाएगी 40 41 42 40, तो ये 40 41 42 43। इसी बात को और ज्यादा एक्सपेंड किया जा सकता है, बी आई स्टेटेड एज एन आई फॉलोड बाय एज मैनी इंस्टेंसेस, इसको जितने भी चाहें इंस्टेंसेस तक ये कॉन्सेप्ट इन हो सकता है एक्सपेंड। यानी अगर 10 डायमेंशन है 50 डायमेंशन डजेंट मैटर, आप बजाय सारों में वो लिखें ये वाली अरेंजमेंट, उसकी जगह ये भी अलाउड है कि बी में आपने पहली भी आई जो भी थी एक डायमेंशन वैल्यू दे दी, कॉमा
डैश 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 कर दें, इसका मतलब है रिमेनिंग ऑल द डायमेंशन हैव दिस केस। एक तरीका ये है। सपोज आप अगर एक 5 एक्सिस सिस्टम पर का आपका है मैट्रिक्स, तो उसका जो इंडेक्सिंग का ट्यूपल है वो ये होगा। यहाँ आपने लिखा एक 1, एक पहला इंडेक्स का ये है पॉइंट कर रहा है, दूसरा इंडेक्स इधर पॉइंट कर रहा है, और तीसरे चौथे पांचवे में ऑल द एलिमेंट्स इन दोज डायमेंशन। व्हाट इट मीन्स इज ये कि पहली डायमेंशन में ये है नंबर, दूसरे में ये नंबर इंडेक्स का, तीसरे में ऑल ऑफ देम, चौथे में ऑल ऑफ देम, पांचवे में all of them। इस तरह भी आप लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर ये कह दिया हमने कि ये 5 एक्सिस वाला है, तो एक्स के साथ अगर डॉट 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 कॉमा एंड में ये लिखा हुआ 3, इसके आगे डॉट डॉट नहीं है, तो ये एक लिहाज से आपके 5th एक्सिस की ये इंडेक्स हो गया, और बाकी 4 ऑल। तो ये 1 2 3 4 चार इंडेक्सेस का ऑल और 5th का 3। तो दिस थिंग एंड दिस थिंग इज सेम। इसी तरह ये आपने ये 5 इंडेक्सेस का केस लेना है, तो आप इस तरह अगर आपने एक पहले वाले में कहा ये 4 डैश कर दिए, फिर आपने ये 5 कहा, फिर कॉमा करके और ये केस दिया ऑल, तो ये इसका मतलब है 5th डायमेंशन के लिए है ऑल, 4th डायमेंशन के लिए है ये 5, और पहली डायमेंशन के लिए है 4। इसके ये मायने दिस इज इक्वल टू 4, फिर दूसरी डायमेंशन ऑल, तीसरी डायमेंशन ऑल, चौथी डायमेंशन का इंडेक्स 5 और 5th डायमेंशन ऑल। तो ये काफी ज्यादा जब बड़े और मल्टी डायमेंशनल मैट्रिसेस की सिचुएशंस आएंगी तो ये आपके लिए handy होगा। अब हम स्टैकिंग ऑफ 2D अरेज को यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टैक करने से क्या मरा है। इसको फिर हम आगे और फर्दर इसकी डिटेल भी देखेंगे, मगर यहाँ खाली इंट्रोडक्टरी लेवल पर आप स्टैक को देख लें और फिर उससे शेप पर इफेक्ट को देख लें। ये आप CNP.array, ये 3D अरे, 2 स्टैक 2D अरे, ये अभी खाली ये बताया है कि किस तरह हमने जैसे डिफाइन किया था। अभी इनफैक्ट स्टैकिंग ऑपरेशन हम अप्लाई नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ बता रहे हैं कि हमारे यहाँ जो डेफिनेशन में 3D अरे बनाने का मकसद ये था, जो मैंने पहले भी बताया है, कि आप लोएस्ट 2 डायमेंशन जो है राइट के, उन पे बेस करके एक मैट्रिक्स बनाएं, और फिर यही साइज की मैट्रिक्स उसके नीचे रिपीट करें, और फिर इन दोनों को इकट्ठा करें। इसकी एक्चुअली डायमेंशन वाइज 2 2 और 3 है, यानी इसकी जो डायमेंशन है। तो पहला जो 2 है वो छोड़ दें, और 2 और 3 की आप ये मैट्रिक्स बनाई, फिर 2 और 3 की मैट्रिक्स बनाई, और जो पहला फर्स्ट 2 था उसका मतलब है ये दो को ये उसके रेपिटेशन हो रहा है दो के लिए। तो ये हम किस तरह 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करते हैं, हमने ये लास्ट टाइम देखा। तो अगर आपने ये 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स यहाँ शो की अरे के उससे, तो ये इसकी शेप है 2 2 3 2 3 इज दिस एंड दिस, और फिर ये 2 टाइम्स रिपीट हुआ है वो ये। तो इस केस में अगर आप कहें ये सी ए के आपने बनाया है, और अगर आप इसको कहें C1 और डैश डैश डैश, इसका मतलब है इसका सबसे ये जो पहला वो था जो ये होता है, उसको आप 1 सिलेक्ट करें और बाकी के सारे रहेंगे कंप्लीट इस्तेमाल करें। तो ये पहला वाला जो था ये 0 है और ये 1 है, ये लेफ्ट मोस्ट वाला। तो फिर ये 1 आपने सिलेक्ट किया और इसमें तमाम बाकी 2/3 ये वाले जो हैं वो कंप्लीट शामिल हैं, तो ये बन गया।
तो ये एक एग्जाम्पल हो गई जो हमने अभी पीछे सीखा कि भाई आप इस तरह से बाकी डायमेंशन को शो कर सकते हैं, तो ये उसकी एग्जाम्पल। इसी तरह अगर आप इस केस में ये जो सी है, इस केस में आप ये नोटेशन इस्तेमाल करें, ये 3 डायमेंशनल थी, तो आखिरी डायमेंशन की वैल्यू उसने इंडेक्स की दे दी 2, और बाकी सबको कहा कि दे विल बी देयर। लास्ट डायमेंशन जो है इसकी, वो ये कॉलम की है, ये है, ठीक। तो वो कॉलम की वैल्यू उसने दे दी 2, 0 1 2, ये कॉलम 2 है। अब इस कॉलम में रेस्ट एवरीथिंग सारे उसके शामिल होंगे, कॉलम 2 के ये सारे शामिल हो गए, ये पूरा कॉलम 2 ऑल अक्रॉस। तो 213 और फिर ये 102 113, 213 और 102। तो ये उनकी एग्जाम्पल्स हुई जो हमने ये पीछे कहा था कि आप ऐसे कर सकते हैं। ओके, फिर एक चीज और कि अगर मल्टी डायमेंशन अरे है, उस पर आप इटरेट कई तरीकों से कर सकते हैं उसके एलिमेंट्स पर, आपको जरूरत अगर है। एक, सपोज आप, अगर आप उस पूरी अरे का नाम दे दें, ये पीछे अरे हमने बी डिफाइन की थी, उसको देख लेते हैं। अगर पूरी अरे का नाम दें और ये फॉर लूप अप्लाई करें, फॉर वट एवर एक्स इन बी, यहाँ उसने फंक्शनल नेम लिख देता है। इट डजेंट मीन के यू सिलेक्ट रो इज सिलेक्टेड बिकॉज ऑफ द रूल, तो मैं कहूंगा फॉर एक्स इन बी, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या करेगा, बी इज ए 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स, ये पीछे है। ये ये 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स बी थी हमारी, ठीक है। इसमें हमने कहा फॉर एक्स इन बी। अब बी के तो कई डायमेंशन है, जब बी की डायमेंशन अगर मेंशन नहीं की आपने फॉर लूप में, तो ये उसकी हाईएस्ट डायमेंशन को लेगा, यानी पहली डायमेंशन को लेगा, ये सबसे पहले रो। तो इसका मतलब है अब ये फॉर लूप फॉर रो पे चलेगा, तो रो बाय रो। तो आपने पहले 0th रो, फिर फर्स्ट रो, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो, इस पे ये फॉर लूप चलेगा। अगर आप प्रिंट कहते हैं, प्रिंट दिस एक्स, प्रिंट एक्स, इसका मतलब है आपने इस बी के रो वाइज ये प्रिंट कर दिया। अच्छा, आप कई दफा चाहेंगे कि नहीं मैं इस तरह ना करूं, रो वाइज, मैं चाहता हूं सारे एलिमेंट्स प्रिंट करूं। अब मुझे क्या करना चाहिए, हाउ टू एक्सेस ऑल द एलिमेंट्स। उसके लिए अगरचे वो डबल इंडेक्सिंग के तरीके से भी आप उन पे जा सकते हैं, जो कि अलाउ करता है, 2 फॉर लूप बना लें और कर लें। लेकिन एक बहुत आसान तरीका जो आपको यहाँ है, वो ये है कि फॉर एक्स, ये मैं एलिमेंट का नाम, इसने फंक्शनल नेम लिख देता है, तो आपको उससे धोखा हो सकता है कि शायद ये एलिमेंट की वजह से इसने एलिमेंट सेलेक्ट किया। नो, फॉर एक्स इन matrix dot flat, this is a method available anywhere, or keyword of the language, b dot flat। ये इसका मतलब है इसने इसको जिस तरह ये स्टोर हुई हुई होती है मेमोरी में, हमने बताया था रो बाय रो, तो वो उस पूरी मैट्रिक्स को फ्लैटन आउट कर देगा एज पर द स्टोरेज, जो कि असूल है रो बाय रो स्टोर हो। तो ये है मेमोरी में 0 1 2 3 स्टोर होगा, फिर 10 11 12 13 होगा। ये रो बाय रो मेमोरी में एक लीनियरली स्टोर हुई हुई चीज होती है, उस शक्ल में ये इसको बना देगा। तो आप प्रिंट करते जा रहे हैं, तो आपको हर दफा ये एलिमेंट मिलेगा। तो ये बड़े एक नीट सिंपल तरीके से getting access to all the elements for the purpose of either printing or reading or writing or modifying whatever। और ये अगर हर रो पर कोई एक्टिविटी आपने करनी है तो ये। अच्छा, अब शेप की मैनिपुलेशन, हमने शेप तो सीखा हुआ है, अब उसके बारे में स्मॉल मैनिपुलेशन देखेंगे along each axis। शेप का ही मतलब
शेप गिव्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलोंग ईच एक्सिस, पे कितने हर एलिमेंट्स हर एक्सिस पर हैं। अगर आप एक ए मैट्रिक्स जनरेट करते हैं ये एनपी के जरिए से, आपने आरजी हमने पीछे डिफाइन किया था, एक रैंडम नंबर जनरेटर का इंस्टेंस, उसके जरिए से आपने ये 3/4 की रैंडम नंबर की, वहां भी हमने किए थे, यहाँ ये एक जनरेट की एक मैट्रिक्स 3/4, 3 रोज 4 कॉलम, और उसमें रैंडम नंबर फिल किए विद इन द रेंज जो वहां पर आपने इस इंस्टेंस में मेंशन किए थे। इस इंस्टेंस में आपने मेंशन किया था 1, और उसका मतलब था कि बिटवीन 0 to 1 वैल्यूज हैं, पॉइंट वैल्यूज के साथ। उसको आप हर दफा 10 से मल्टीप्लाई करोगे इसके लिए, तो वो वैल्यूज इंस्टेड ऑफ 0.37 0.79 की बजाय 3.7.8 नंबर आपका लेफ्ट पे आ जाएगा। उसके बाद अगर आप फ्लोर वैल्यू का फंक्शन अप्लाई करते हैं तो उसके तमाम फ्रैक्शनल पार्ट निकल जाएगा, ऑल्दो इट इज ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जिसके तमाम राइट हैंड साइड को आपने फ्लोर कह के हटा दिया है, तो ये नंबर इस तरह के बन जाएंगे 3.7 पॉइंट, क्योंकि इट्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जिसमें राइट साइड से आपने तमाम वैल्यूज को हटा दिया, मगर फ्लोट को वो हमेशा ऐसे ही शो करेगा। ये आपने एक अरे जनरेट किया। इसका अगर शेप प्रिंट किया आपने तो ये आपका 3/4 शेप प्रिंट हो गया। अच्छा, ये आपने अभी जनरेट की है, इसके ऊपर आपने मैनिपुलेशंस करनी है डिफरेंट तरीके से, इसकी शेप की मैनिपुलेशन हम देखेंगे कि एट टाइम्स जब आप शेप की मैनिपुलेशंस कर रहे हैं ओरिजिनल मैट्रिक्स स्टेज द सेम, और उसको वो चीज कायम रहती है। ये जो 3 एग्जांपल हम आगे दिखा रहे हैं उसमें ओरिजिनल मैट्रिक्स डजंट चेंज, हाउएवर उसका वो जो शेप्ड चीज है वो आप देख सकते हो कि आफ्टर दिस शेपिंग ये कैसी लगेगी, आफ्टर दिस शेपिंग ये कैसी लगेगी, ये ऑप्शन आपके पास है। जैसे एक तरीका, अभी आपने फ्लैटन के नाम से सुना, इसमें एक रेवल का भी फंक्शन है। ये फंक्शन ए डॉट रेवल करें तो आपको इससे एज ए रेवल्ड थिंग ए डॉट, इस ये रिटर्न करेगा आपको फ्लैटन थिंग, जो अभी हमने देखा कि सारे रो वाइज उसको फ्लैटन कर देगा। तो ये अरे आपका जो पीछे था यहाँ, ये इसको अगर आप ये कहें रेवल, तो ये इस रो एक वन अरे बना देगा, दिस रो फॉलोड बाय दिस रो फॉलोड बाय दिस, ये बन गया। ये रोज के तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन करके रेवल। ए डॉट रीशेप कह के आपने इसको 6 2 कह दिया, 6 रोज 2 कॉलम्स में अरेंज करो, ये सारे नंबर्स यहाँ पर हैं, या आपने तो ए को कहा है, असल में आपने ए को कहा है। इस फंक्शन से ये ए चेंज नहीं हुआ, ए अभी भी वही है ये। तो इस ए को अगर आपने 6 2 के उसमें अरेंज करना है तब भी तरीका वही होगा कि आपने 2 2 के वो बनाने हैं तो 3 7, फिर इधर ही चलेंगे 3 4, फिर इधर चलेंगे रो वाइज 1 4, फिर 2 2, फिर 7 2, फिर 4 9, और इस तरह इसके 6 बन जाएंगे 2 2 वाले ग्रुप्स। ये 3 7 3 4। ओके, ऑलराइट, वी कंटिन्यू विद, ये 6 2 की शक्ल में आ गया। एक और, उस ए को एज ए ट्रांसपोज, ये टी इज ए ट्रांसपोज का फंक्शन, अगर ए डॉट टी कहेंगे तो ए एज ए ट्रांसपोज थिंग आप व्यू कर सकते हो, इनमें ए की वैल्यू चेंज नहीं होगी मगर व्यू कर सकते हो। व्यू कैसे कर सकते हो, उसका तरीका ट्रांसपोज ऑल ऑफ यू नो, आपको ये इनवर्स में भी जरूरत पड़ी थी, इसको असाइन करके यूज भी कर सकते हो कि आप बारी बारी एक कॉलम को लेते जाएं, ये 3 1 7 7 4 2 3 2 4 4 2 9, और इनको एज ए रो लिखते जाएं,
कॉलम्स को एज ए रो लिखते हैं 317 742। तो कॉलम्स को रीड करके एज ए रो लिख दिया जाए तो वो ट्रांसपोज हो जाता है। तो ये ट्रांसपोज शेप ऑफ ए। अगर आप ए डॉट टी का शेप देखें तो वो अब ट्रांसपोज होने के बाद 3/4 पे 4/3 है। लेकिन अभी भी इसने खाली उसका व्यू को वो किया, अभी आपने साइन नहीं किया, तो ये अभी खाली व्यू करने से ए चेंज नहीं हुआ। अगर आप ए की शेप करेंगे तो अभी भी 3/4 है। ये बात बताया रहता है कि हम इन तीन फंक्शन को, अभी आपने जब सिर्फ फंक्शन अप्लाई किया और इसको असाइन नहीं किया किसी उसमें, तो ये आपको एक किस्म के उस अरेंजमेंट के व्यूज दिखा रहे हैं और ओरिजिनल ए को चेंज नहीं कर रहे। तो रेवल री और ये रीशेप और ट्रांसपोज, ये एग्जाम्पल। अच्छा, अब एक और चीज, रीशेप में आपने उसकी अरेंजमेंट डायमेंशन की चेंज की। अगर आप एनडी अरे में रीसाइज का मेथड इस्तेमाल करें तो वो जस्ट बाय सेइंग दैट मेथड वो उसकी वैल्यूज भी रीशेप भी कर देगा और वैल्यूज भी चेंज कर देगा, दोनों काम कर देगा रीसाइज। तो अगर आपका ए जो था वो ये था पुराना, ये 3/4 का मैट्रिक्स जो आपने भी जनरेट किया, अगर आप कहेंगे ए डॉट रीसाइज और ये डायमेंशन आपने दे दी शेप की, तो ये इसको ये वाली शेप भी देगा और ए की वैल्यूज को चेंज भी कर देगा। तो अब ये वाला जो था 2 6 का मतलब है कि अब आपको 2 रोज और 6 कॉलम्स में है और पढ़ना आपने इधर से है। तो कॉलम्स को पढ़ेंगे तो यहाँ तक गए, फिर यहाँ आए, तो ये यहाँ पहली रो हो गई। फिर यहाँ से शुरू किया और चलते गए और ये आ गया, तो सेकंड रो आ गई। तो 2 6 में आपने 2 रोज बनानी थी, तो इस तरह बन गई इस तरह। और ये अब ए प्रिंट किया तो वो ये वाला मॉडिफाइड प्रिंट हो गया, वहां पर व्यू था और यहाँ पे वैल्यू भी चेंज हो गई। तो रीशेप रीसाइन में आप फर्क देख सकते हैं। वो -1 के साथ वो कह रहा है कि अगर आप ये कहेंगे तो वो उस वाली डायमेंशन खुद ब खुद तय हो जाएगी। अगर आपने ये 3 इधर कह दी है तो दूसरी डायमेंशन जहाँ -1 लिखा है उसके मुताबिक तय हो जाएगी, क्योंकि आपकी अगर ओरिजिनल डायमेंशन में 3 उसकी प्रोडक्ट आपके पास है, फर्स्ट को 12 था आपका उसका आंसर, तो अगर एक आपको दे दिया और दूसरा -1 लिख दिया तो आप वो वैल्यू वहाँ रिप्लेस हो जाएगी ऑटोमेटिकली और वो उसके हिसाब से किया जा सकता है। यानी अगर 4 5 डायमेंशन थी, 3 4 थी, 3 आपने दी हुई हैं, तो ऑटोमेटिकली 4 डायमेंशन के लिए आप -1 लिख दें तो वो सिस्टम कंप्यूट कर लेगा रीशेपिंग के लिए। अब ये स्टैकिंग का है। वहां तो स्टैकिंग जो था वो खाली इस हद तक था कि जब हम 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स बनाते हैं तो हम 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स राइट के 2 एक्सेस को यूज करके बनाते हैं और उन्हें 2 दफा रिपीट करते हैं, वहां इस हद तक खाली बात हो रही थी। लेकिन एक स्टैकिंग ऑपरेशंस हैं जो आप अप्लाई करते हैं अरेज में, नमपाई के अरेज में यू अप्लाई दी स्टैकिंग ऑपरेशन। स्टैक करना, जैसे प्लेटों को और चीज़ों को स्टैक करते हैं, इस तरह आप मैट्रिसेस और अरेज और उनको भी स्टैक कर सकते हैं। अब स्टैक करने के लिए अगर एक से ज़्यादा डायमेंशन है किसी के अरे के, तो आप ये तय करोगे किस डायमेंशन में स्टैक करूं, प्लेटों को वर्टिकली एक दूसरे के ऊपर रखूं या प्लेट्स को हॉरिजेंटली खड़ा करके और एक दूसरे के साथ जोड़ें। तो ये स्टैकिंग का वो है। कुछ उसमें वर्ड इक्वलेंट वर्ड्स हैं एक ही चीज के लिए, 2 3 जिसको हम बता देंगे, लेकिन अल्टीमेटली यही है कि क्या अगर फर्स्ट करो 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है तो उसको आपने ऊपर नीचे रख के स्टैक करना है या राइट पर रख रख के उन्हें सबको ज्वाइन करना है, ये अल्टीमेट इसकी बात है। अब उसकी ये एग्जाम्पल है डिफरेंट एक्सिस में स्टैक करना। सर जी जी। सर ये जो आपने फ्लोर लिखा हुआ है, फ्लोर 10 × ये RG मुझे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा पहले, इंपोर्ट रैंडम के नाम जी से। जी, आपने रैंडम के लिए तो हमने बहुत पाइथन में ही कर लिया था। हाँ जी। हाँ,
आपको रैंडम की लाइब्रेरी तो इंपोर्ट आप कर रहे हैं, पाइथन में कर रहे हैं, और इसके अंदर ये जो है जब आप ये कर रहे हो तो ये इसमें इसमें भी रैंडम की वो फंक्शन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी जी रैंडम के लिए जो इंस्टेंस आपने अभी बनाया था, ये एक इंस्टेंस है। जी यहाँ आर जी आपने रैंडम वाला नंपाई का यूज करके एक इंस्टेंस बनाया था कुछ पहले हमने शुरू में। जी हम उस इंस्टेंस में हमने ये कहा था कि भाई इस फॉर्मेट के रैंडम नंबर जनरेट हो और इस रेंज में जनरेट हो। वो हमने एक जी इंस्टेंस बना लिया। अब हम उस इंस्टेंस को यूज करके अपनी डिफरेंट शेप में मैट्रिसेस बना रहे हैं। तो जी अगर आप यहाँ कह रहे हो उस इंस्टेंस को यूज करके 2 बाय 2 की एक मैट्रिक्स बनेगी जिसमें वैल्यूज रैंडमली सिलेक्ट होके 0 से 1 के दरमियान फ्रैक्शनल वैल्यूज ये जनरेट करेगा। अगर आप ये कहो उस इंस्टेंस को यूज किया और उसके साथ डॉट रैंडम लगाया, और ये आपने जी नम पाई के एनवायरनमेंट को इस्तेमाल किया। जी पाइथन के लिए भी रैंडम की फैसिलिटी के लिए आपने इंपोर्ट किया था रैंडम, और फिर वहां पर रैंड इंट और वो चीजें इस्तेमाल की थी। ठीक है, जी दोनों जी सब। सर जी। अच्छा, तो ये आर जी डॉट रैंडम 2 बाय 2, और ये हमने अभी डिटेल से डिस्कस किया कि कैसे इससे ये नंबर बनेंगे। क्योंकि जब आप फ्लोर वैल्यू कहते हो तो फ्रैक्शन पार्ट हट जाता है, 10 से मल्टीप्लाई करने से वो जो फ्रैक्शन था उसके साथ एक नंबर इधर आ गया और ये बन गया 2 बाय 2 का एक बन गया ए। इसी तरह आपने बी को भी इसी असूल के तहत फिर रैंडम नंबर से जनरेट किया, एक और बन गया। रैंडम नंबर थे तो जी these two are not same, their values will be different। हम दो 2 बाय 2 के रैंडम नंबर जनरेशन से अरेज बनाना चाहते थे, या मैट्रिसेस, टू डायमेंशनल मैट्रिसेस, ताकि हम इस एग्जांपल में डेमोस्ट्रेट कर सकें व्हाट इज वर्टिकल स्टैक, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल जी स्टैक, एटसेट्रा। तो अब पहले हम दिखाना चाहेंगे कि np डॉट वी स्टैक वर्टिकल स्टैक ऑफ दीज टू अरेज, जो कि इस केस में मैट्रिसेस हैं। इन दो मैट्रिसेस को वर्टिकली स्टैक कर दो। पहले ये है, उसके बाद ये है। ए को लिया एज ए मैट्रिक्स, यहाँ लिखा है, ये ख्याल है अगर आप इसको वैसे देखें तो ये एक वन लाइन चल रही है, मगर हमने एज ए मैट्रिक्स ही लिखा है। ये पहली मैट्रिक्स लिखी, उसके नीचे दूसरी मैट्रिक्स लिखी, और ये स्टैक होके। अब आप इसमें देखें कि ये वो केस नहीं है कि जिस तरह अभी पीछे हम कह रहे थे कि पूरी मैट्रिक्स लिखकर और उसके बाद जब 3 डायमेंशन पे जा रहे थे तो पहली 2 डायमेंशन मैट्रिक्स लिखी और फिर उसके नीचे दूसरी 2 डायमेंशन मैट्रिक्स लिखी और फिर उसको इकट्ठा किया। नहीं, ये एक्चुअली स्टैकिंग में पहली मैट्रिक्स की ये तमाम रोज यहाँ लिखी, और फिर नीचे दूसरी की रोज इसके साथ जुड़ गई। यहाँ उसका पहली का ब्रैकेट खत्म नहीं हुआ, तो आपने मैट्रिसेस की रोज को पहली की और दूसरी की ऊपर नीचे स्टैक कर दिया। ये है वर्टिकल स्टैक। हॉरिजॉन्टल स्टैक, जैसे कि इसके नाम से लग रहा है कि हमें लगना चाहिए कि पहली आप मैट्रिक्स लिखें और उसके हॉरिजॉन्टली यहाँ पर दूसरी लिख दें, ये हॉरिजॉन्टल स्टैक होना चाहिए। एक्चुअली दैट विल मीन कि उसके कॉलम्स आप इकट्ठे कर देंगे। तो आपने यही किया, पहले ये लिखा 9 5, फिर 7 2, और फिर ये नहीं है कि ये अब ये इकट्ठा, अब ये जुड़ गए इसके कॉलम और उसके आगे उसके कॉलम शुरू हो गए दूसरी मैट्रिक्स के 1 5 9। ए और बी में पहले इसके कॉलम फिर इसके कॉलम, ये हॉरिजॉन्टल स्टैक हो गया, ये वर्टिकल स्टैक हो गया। अच्छा, अब ये काम यही दो हैं बस। बाकी अब इनके लिए टर्मिनोलॉजी वाइज इसके लिए अल्टरनेट वर्ड्स भी बहुत सारे हैं। ठीक है, कॉलम स्टैक का वर्ड है, तो आप कॉलम स्टैक और ए बी कहेंगे, तब भी ये जो अभी आपने देखा था हॉरिजॉन्टल स्टैक, वो वाला काम होगा। क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्टैक में कॉलम आपस में स्टैक टुगेदर हो जाते हैं, तो देयर इज अनदर वर्ड कॉलम स्टैक। ठीक, ये उसकी मिसालें हैं। उसमें उसने ये भी बताया है एक यहाँ के न्यू एक्सिस में ये है कि अगर आपकी सिंगल अरे है और उसको आप
2 डायमेंशन में ब्रेक करना चाहते हैं तो सेकंड डायमेंशन में आप न्यू एक्सिस का इस्तेमाल कर लें और वो 2 डायमेंशन की बन जाएगी और फिर यही काम आप उस पर कर लेंगे। ठीक, न्यू एक्सिस फिलहाल इस लेवल तक ही देख रहे हैं। फिर अगर हमें कोई इसकी डिटेल की ज़रूरत पड़ी तो उसको और डिटेल देख लेंगे। यहाँ पर उसकी एग्जांपल में, यानी लीनियर वाले को अगर 2 डायमेंशन में करना है तो सेकंड डायमेंशन के लिए आप ये न्यू एक्सिस का इस्तेमाल कर लेते हैं और वो इंपोर्ट किया हुआ है आपने ऊपर और उसको इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, इसी में जब हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो हम देख सकते हैं कि रो का स्टैक हमने देखा, जब वी स्टैक कहा था तो रोज स्टैक हुई थी, तो इट इज सेम थिंग। ओके, तो क्या कॉलम रो का स्टैक करना सेम थिंग एज वी स्टैक? अगर आप ये क्वेश्चन डालोगे समझने के लिए कि कौन सा किससे मैच करता है तो ये भी तरीका है कि कहते हैं इज इट इज सेम एज दिस, ये यू कैन पुट दिस कमांड एंड यू विल से यस। अगर आप दूसरा बात कहोगे कि कॉलम स्टैक इज दैट एच स्टैक, वो कहेगा नो फॉल्स। ये किसी वक्त आपको कंफ्यूजन हो रहा है या कुछ तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि ये चीजें, तो ये हो गया। इसी तरह फिर इसके अंदर ये वर्ड भी दे दिए उसको ज्यादा मैनिपुलेटिव फैसिलिटी देके कि जैसे हमने कहा था कि रो स्टैक इज सेम एज रो स्टैक इज सेम एज वर्टिकल स्टैक, तो ये रो स्टैक के लिए एक तरीका ये भी दे दिया उन्होंने कॉम्प्लेक्स रो और ये अंडरस्कोर, 2 अंडरस्कोर के साथ सी और 2 अंडरस्कोर के साथ रो स्टैक एंड कॉलम स्टैक के लिए ये टर्मिनोलॉजी भी है। और दे अलाउ द यूज ऑफ रेंज लिटरल्स, इससे ये होगा कि रेंज के लिटरल्स अलाउ कर सकते हैं आप इस तरह, और फिर इसी एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं बेहतर। जैसे आपने एनपी के साथ कहा ये रो स्टैक, और उसके लिए आपने जब ये बता दिया तो ये बन गया 1 से 4 पहली इस डायमेंशन में, फिर 0 इस डायमेंशन में और 4 इस डायमेंशन में। तो ये 1 से 4 वाला ये आ गया 1 2 3 और फिर ये 0 और फिर ये 4। तो इस तरह ये स्टैकिंग के लिए, तो रो स्टैक आर अंडरस्कोर, कॉलम स्टैक सी अंडरस्कोर, और इनके रो स्टैक इज वी स्टैक एंड कॉलम स्टैक इज एच स्टैक। ये उनका बिहेवियर भी हमने देख लिया, ये टर्मिनोलॉजी है और ये बिहेवियर। जिस तरह स्टैकिंग में ज्वाइन कर रहे थे हम स्मॉलर साइज की मैट्रिसेस को बड़े में, इसी का अपोजिट काम स्प्लिटिंग में होता है। और उसी तरह जिस तरह वहां, इसी तरह इसके केस में हॉरिजॉन्टल स्प्लिट, वर्टिकल स्प्लिट, तो दे आर सिमिलर इन बिहेवियर, अपोजिट सिमिलर एंड अप्रोच इस टर्म्स पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का कॉन्सेप्ट वही है, मगर इस केस में ब्रेक कर रहे हैं, उस केस में ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी। ये दोबारा आपने इस केस में आपको ये स्ट्रेच किस्म का चाहिए था तो आपने जनरेट किया 212 रैंडम नंबर से, 212 के साइज की ये अरे जनरेट की ए। अब स्प्लिट करने के कई तरीके हैं। एक, यू स्प्लिट समथिंग इनटू इक्वल सो मैनी पार्ट्स, सो मैनी इक्वल पार्ट्स। तो उसके लिए आपने कहा एनपी डॉट हॉरिजेंटल स्प्लिट ए को करो इन 3 इक्वल पार्ट्स। ये ए था, इसकी इस डायमेंशन में 12 थे, ये हॉरिजेंटल डायमेंशन है, इस डायमेंशन में इसके 3 हिस्से करने हैं। तो एक ये 12 है तो 4 पर एक हिस्सा, अगले 4 पर दूसरा हिस्सा, अगले 4, ये 3 हिस्से बन जाएंगे इसके। तो इसका आंसर अगर A3 करेंगे तो ये होगा, ये पहला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक वाला, ये 4 कॉलम्स का ये हिस्सा बन गया, ये पहला। और फिर दूसरा जो था वो ये है, ये वाला 01584 6। अच्छा, इसको क्योंकि लिखने में इस तरह लिखा है कि पहले ये अरे, देखिए पहली अरे इसके 3 हिस्से बनाए, तो पहली अरे ये बनी, उसके बाद ये दूसरी अरे,
उस दूसरी अरे को हम हमेशा, असल में ये यहाँ के बाद कॉमे के एक्चुअली तो यहाँ लिखी होनी चाहिए होती है, मगर हम लिखते हैं ताकि अरे की तरह नजर आए। तो यहाँ जब उसने ये पहला वाली रो इस हिस्से की यहाँ लिख दी, तो जो ये दूसरी रो है वो इसके बाद आई, वो ये है 1867 1867। तो ये एक्चुअली ये मैट्रिक्स है जो यहाँ इस तरह लिखी हुई है, अरे के बाद पहला रो और ये दूसरा रो। इसी तरह ये जो लास्ट था, इसकी पहली रो 6852 ये, और उसके बाद ये दूसरी रो। तो इनको यू शुड कंसिडर देम, दिस इज थर्ड मैट्रिक्स, दिस इज सेकंड मैट्रिक्स एंड दिस इज फर्स्ट मैट्रिक्स। ये इसके तीन हिस्से हो गए, हर एक अरे अरे के साथ अलग हो गया। ये स्प्लिट है। ये स्प्लिट इस तरह बताना कि इक्वली इतने पार्ट्स में कर दो, ये भी हो सकता है। और इसका एक और ऑप्शन भी है कि एच स्प्लिट में आप अरे दें जो भी है, जितने भी डायमेंशन वाली, और उसमें बताएं कि किस किस जगह स्प्लिट हो। यानी आप अनइक्वल स्प्लिट्स भी कर सकते हैं, इट डजंट हैव टू बी इक्वल स्प्लिट्स। तो आप कह रहे हैं मैं 3 कॉलम्स का एक स्प्लिट, एक 3 कॉलम के बाद करूंगा, यानी पोजीशन 3 पर आएगा वो, 3 कॉलम के बाद और फिर 4 कॉलम के बाद। हॉरिजॉन्टल स्प्लिट है तो कॉलम ही के ये नंबर है। तो पहले 3 कॉलम पर आपने एक स्प्लिट ये कर दिया, ये बन जाएगा। फिर 4 कॉलम के बाद एक और स्प्लिट किया, इसका मतलब अब 3 और 4 के दरमियान ये स्प्लिट बना। एक स्प्लिट आपने 3 के बाद मारा, एक स्प्लिट आपने इधर किया, तो एक पोर्शन ये बनेगा, दूसरा पोर्शन ये बनेगा, और तीसरा पोर्शन ये बनेगा। ये 3 के साइज का है कॉलम का, ये 1 कॉलम का है, तो 4 हो गया, और ये 8 कॉलम का आखिरी। तो ये पहला 3 वाला, ये दूसरा 1 वाला 9 7 ये, और तीसरा ये 6 वाला, पहला 6 की रो ये, और फिर दूसरी 6 की रो ये। तो इस तरह ये आप पोजीशन बेस्ड स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं, और बाय टेलिंग के हाउ मैनी इक्वल पार्ट्स वाली स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं। वही बात के इसी तरह जिस तरह ये हॉरिजॉन्टल स्प्लिट है, वर्टिकल स्प्लिट स्प्लिट्स अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। तो वो आप उसी तरह वर्टिकल पे भी स्प्लिट हो सकता है जिस तरह हमने ज्वाइनिंग में किया। ओके, एनी क्वेश्चन सो फॉर जो हमने चीजें कवर की हैं? वी आर क्लोज टू completing our kind of second level of depth of numpy। हमने फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट लेवल ऑफ डेप्थ की चीज़ें देखी थी, आज के लेक्चर में हम सेकंड लेवल ऑफ डेप्थ की चीज़ें देख रहे हैं। और इसके बाद आपको आज ही नंपाई के असाइनमेंट हम देंगे, जो एज यूजुअल मंडे है। लास्ट टाइम आप लोगों की ख्वाहिश थी इट शुड बी 12 o'clock एट नाइट बिकॉज यू वर्क वेरी हार्ड, तो उसका टाइम हमने 23:59 आवर्स कर दिया है। तो मंडे को आप उस टाइम तक सबमिट कर सकते हो, और आपके पास एडिशनल मौका बिफोर सबमिटिंग, अगेन डिस्कसिंग इट नाउ एंड डिस्कसिंग इट टुमारो एंड देन डिस्कसिंग इट ऑन मंडे। और हम हर वक्त आपको उसके सॉल्यूशन के हिंट्स देने को तैयार रहते हैं। बिल्कुल आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं देते, मगर आपको जो कोई डिफ़िकल्टी हो उसको एड्रेस कर रहे होते हैं। अभी इसके बारे में ओके, मैं अभी असाइनमेंट पर जब आऊँगा तो डिटेल्स डिस्कस करेंगे। ओके, इसके ये लास्ट फ्यू थिंग्स, एक कॉपी का बहुत ज़्यादा जगह जगह आपको इसका नज़र आएगा, और दैट इज़ लिटिल कंफ्यूजिंग। तो थोड़ा सा हम उसको देख लेते हैं, ताकि जब आपको असल में कोड्स आप देखोगे, कई दफ़ा दूसरे कोड्स देखोगे और कई दफ़ा अपने कोड्स लिखोगे, और क्योंकि इसका अपना रोल है, तो कॉपी के बात को भी हम से देख लेते हैं कि कॉपीज़ और व्यूज़ से क्या मुराद है। कॉपी की 3 किस्म की सिचुएशंस हैं कॉपीज़ एंड व्यूज़ की। एक है कि एक्चुअली नो कॉपी, एक है शैलो कॉपी जो व्यू कहलाता है, और एक है डीप कॉपी। ठीक,
तो नो कॉपी वाला केस की ये एग्जांपल है कि अगर आप ए का अरे आपका ये है और आप असाइनमेंट वाइज कहें ए गोज टू बी, इसमें कोई नई ऑब्जेक्ट नहीं बनती। एक्चुअली वो उसको पॉइंट उधर कर लेता है जैसे पॉइंटर का केस होता है, मगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनती बी। तो अगर आप कहें बी इज ए तो ये कहेगा बी इज ए इज सेम एज ए, मतलब बी इज ए, इट इज ट्रू। ए एंड बी आर टू नेम्स फॉर द सेम एनडी अरे ऑब्जेक्ट। ये जो एनडी अरे ऑब्जेक्ट था उसके लिए ए और बी आर जस्ट टू नेम्स और दे आर सेम, कोई कॉपी नहीं बनी, वो उसी के ऊपर उसने पॉइंट कर दिया एक्चुअली, तो दे आर सेम। सो बी इज ए। ये उसके एग्जांपल्स वगैरह का है, हम उसको देखते हैं। हम कॉपी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। शैलो कॉपी, शैलो कॉपी इज लाइक व्यूइंग। जैसे हम डेटाबेस में, आपकी डेटाबेस वही रहती है और आपके डिफरेंट व्यूज बनाते हो, इज समवेयर क्लोज टू, समवेयर लाइक दैट, नॉट एग्जैक्टली मे बी, बट समथिंग टू गेट एन आई। तो अब ये ए था, आपने कहा ए डॉट व्यू और उसे सी पे वो कर दिया, तो ये एक्चुअली ए का एक व्यू है जो आप कह रहे हो सी को आप दे रहे हो व्यू। तो सी इज ए का जवाब तो कहेगा नो, मतलब सी इज नॉट सेम एज ए, नो। इसने उसको सी का उस सेंस में सी का व्यू ऑब्जेक्ट बना है मगर ए की कॉपी नहीं बनी, उसका व्यू बना है। तो ये सी इज ए को तो फॉल्स कह देगा। हाउएवर अगर आप कहेंगे सी का बेस जो है इज ए, सी डॉट बेस जो है वो ए है, वो कहेगा यस। यानी इसने जो ये व्यू बनाया है वो ए से लेके बनाया है इन सी, तो सोर्स वो है तो बेस वहां से आता है, बट इट्स नॉट सेम एज ए। तो ये इसके आंसर्स होंगे इस केस में। तो इसकी एग्जाम्पल हम यहाँ देख सकते हैं कि सी को अगर आप जैसे रीशेप करते हैं 2 6, अब ये आपने उसका एक किस्म का व्यू बनाया है, तो ए की शेप अगर आप निकालें, सी डॉट रीशेप किया 2 6, यानी ए को, ए के में 12 एलिमेंट्स थे, आपने हमने पीछे भी देखा, रीशेप करके हम 2 6 में अरेंज कर सकते हैं। अब अगर आप ये काम कह के कहें ए की शेप क्या है, ए की शेप वही है क्योंकि ए में कोई चेंज इसने नहीं किया, ये इसका व्यू है जो सी में बना है ए का। हाउएवर इसके अंदर ये फर्क है ये शैलो कॉपी में कि ए को चेंज उस सेंस में तो नहीं करता, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक पोजीशन पर कोई चीज लिखते हो, राइट करते हो, तो वो ए के कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस पे चला जाता है। शेप ए की चेंज नहीं हुई, ए एज ए होल उस तरह रीअरेंज नहीं हुआ, ये व्यू खाली था। लेकिन अगर उस व्यू में आपने ये 1 2 3 4 की वैल्यू सी के 0 4 पे भेजी, सी के 0 4, ये 2 रोज में 6 एलिमेंट थे, तो 0 वाले में फोर्थ एलिमेंट जो है वो आपने चेंज किया, तो ये फोर्थ एलिमेंट होगा उसमें 0 1 2 3 4। ये जब आप एक लाइन में लिखा हुआ था तो वहाँ ये फोर्थ एलिमेंट था जिसको आपने चेंज किया और वहाँ 1 2 3 4 लिखा। अच्छा, वो इम्पैक्ट ए के उस कॉरस्पॉन्डिंग लोकेशन में जो एक अपना व्यू था या अपनी शेप थी उसमें वो चला गया, वो वैल्यू वहाँ राइट हो गई। तो इस हद तक ये चेंजेस इसमें आते हैं। तो ये इसकी शैलो कॉपी वाली एग्जांपल है व्यू के साथ अगर जो कोई चीज़ बनाते हैं आप। फिर ये उसी की फर्दर एग्जांपल है सब स्ट्रिंग के साथ भी की जा सकती है कि एक सब स्ट्रिंग में आपने 10 लिखा, ये एस बनाया था आपने, ए के सब स्ट्रिंग में ये जो एस एस जो बना व्यू, इसके अंदर आपने 10 लिखा तो उस सब स्ट्रिंग का 10 वहाँ ए में चला गया इस जगह, यानी ये 1 से 3 का मतलब हुआ ये सेकंड, ये कॉलम वाला पार्ट था, तो कॉलम वाले पार्ट में 1 और 2 कॉलम्स में ए के ये चीज चाहिए। ओके, डीप कॉपी। अच्छा,
मेक्स ए कंप्लीट कॉपी ऑफ द अरे एंड इट्स डाटा। इस केस में वो डीप कॉपी इसलिए कहते हैं। न्यू अरे ऑब्जेक्ट विद न्यू डाटा इज क्रिएटेड। न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा और कंप्लीटली कॉपी हो जाएगा, मगर वो एक न्यू ऑब्जेक्ट होगा। और फिर उसका उस सेंस में कोई ए से शेयर नहीं है, एक कॉपी कंप्लीट बन जाएगी, उसका नाम अपना होगा, बस फिर उसका कनेक्शन खत्म हो गया। व्यू में तो देख रहे थे हम कनेक्शन था कि इसके व्यू में जो चेंज किया वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग लोकेशन पर चला गया, ये था व्यू में। इसमें इनको ये कोई आपस में नहीं पहचानेगा। अगर ये डी में आपने ए डॉट कॉपी किया और ये डी एक नई ऑब्जेक्ट विद होल डाटा ऑफ ए चला गया, अब डी एक अलग ऑब्जेक्ट है। तो अब आप कहें इज डी ए, वो कहेगा नो। क्या डी का बेस इज ए? नो। अब व्यू नहीं है कि ये आपस में कनेक्टेड हो, ये एक नई चीज बन गई, इट डजंट नो एनी मोर ए अबाउट ए। आप डी पर चेंजेस करेंगे तो डी के से ताल्लुक रखेंगे वो, और आप ऐसा कर सकते हैं। तो आपने डी के अगर 0 0 एलिमेंट में 999 किया और उसके बाद आपने ए को प्रिंट किया, तो ए डजंट नो अबाउट इट, इट्स जस्ट लाइक अनदर वेरिएबल आपने उसमें चेंज किया, तो ए वही रहेगा। हाउएवर अगर आप डी प्रिंट करेंगे तो अब ये डी में इस जगह 0 0 पे 999 आएगा। ये है डीप कॉपी। अच्छा, अब एक बहुत सी जगह जब साइजेस आपके अरेज के, विच मीन्स यहाँ पर अरेज का मतलब मल्टी डायमेंशनल मैट्रिसेस, मल्टी डायमेंशनल अरेज के शेप में कुछ डायमेंशन मिसिंग है। एक शेप है लेट्स से 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स की 3 4 जैसे हम देख रहे हैं, और एक वेक्टर जैसे हम यूज कर रहे थे उसका खाली सपोज 4, अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें तो 4 है और दूसरा नहीं दिया हुआ। तो कई दफा आप मल्टी डायमेंशनल अरेज को कंबाइन करके उनके ऑपरेशंस करते हैं, तो उसमें आपकी ज़रूरत, अगर वो उनके डायमेंशन सारे मौजूद नहीं हैं, तो ब्रॉडकास्टिंग के रूल्स के तहत, ब्रॉडकास्टिंग के रूल्स हैं कि ब्रॉडकास्टिंग से क्या मुराद है, आप उन तमाम जगहों पर 1 लिख देते हैं। जहाँ जहाँ डायमेंशन मिसिंग है, अगर आपकी डिफरेंट हैं, तो आप हाईएस्ट वाला के डायमेंशंस लेंगे, शेप के कितने हैं एक्सिस, और दूसरे सारों में जो मिसिंग डायमेंशन है वहाँ आप 1 लिख देंगे, यानी उस डायमेंशन में, जैसे 1 रो या 1 कॉलम या जो भी है। अच्छा, फिर उसमें तमाम मैट्रिसेस अरेज को देखकर उस डायमेंशन में जो हाईएस्ट नंबर है, यानी सारी मैट्रिसेस हैं, अब इसके बाद क्या आपने 1 लिख दिया, अब इन सारों में जहां 1 लिखे हुए हैं उसमें देखेंगे आप तमाम में जो हाईएस्ट डायमेंशन है वो लिख देंगे। और ये एक किस्म का आपके उनकी कंपेटेबिलिटी पैदा हो गई। अब आप उनके ऑपरेशंस करेंगे तो दे विल वर्क फाइन। तो इसको ब्रॉडकास्ट रूल्स कहते हैं। और ये हम देखेंगे कि जब आप मैट्रिक्स वेक्टर और इस तरह के काम डीप लर्निंग में करोगे तो उस वक्त ये आपके हैंडली काम आएगा ये रूल। तो ये ब्रॉडकास्टिंग के सिंपल रूल्स हैं। इसकी अगर इस स्टेज पर भी अगर आप डिटेल्स देखना चाहो तो देख सकते हो। ये इसका यहाँ रेफरेंस है हमारे, लेकिन एनीवे हम इसको डिटेल से यूज़ करेंगे। ये यूज़ होगा जब आप वेक्टर एक तरफ है और मैट्रिक्स दूसरी तरफ है, 3 डायमेंशन मैट्रिक्स है और 2 डायमेंशन मैट्रिक्स है, और इनके आपस में मामलात कर रहे हैं, तो ये रूल इस्तेमाल होंगे। अच्छा, अब इंडेक्सिंग में थोड़े से एडवांस्ड इंडेक्सिंग के ट्रिक्स। बड़ी दिलचस्प बात, ये बड़ा आपको फेमिलियर चीज़ यहाँ पे मिलेगी। ये आपको इंडेक्सिंग भी अरे लेवल पे अलाउ करता है। जैसे और सारे फंक्शन तो अरे लेवल पर हमने अलाउ किए हैं, हमने देखा एक्सपोनेंट एलिमेंट वाइज आपने काम किए, इवन इंडेक्सिंग उस तरह करता है। और आपके लिए बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि सीएनएस में आपने जब पी बॉक्सेस बनाए थे तो काफ़ी ट्रबल में हम सी यूज़ कर रहे थे, विच इज़ वेरी
सिमिलर टू पाइथन, तो आप काफ़ी ट्रबल में नज़र आए कि भाई उसका आई लेंगे, इसका जे लेंगे, उसके आई जे से उसको करेंगे तो आउटपुट वाले पे जे डालेंगे, और वो काम बड़े नेचुरल तरीके से, जैसे हम उसको ऑब्वियस देख रहे हैं फिजिकली, उस तरह कर देगा। ये इसका वो है कि पॉइंटिंग बाय यूजिंग एन अरे ऑफ इंडेक्सेस, कि आपने ये एक ए लिया, आपने अरे बनाया, अरे इन द रेंज ऑफ 12 विच इज 0 से 11 तक, और फिर ये ऑपरेशन भी चलें अप्लाई कर दिया, ये अलाउ करता है, तो उनके स्क्वायर्स, तो आपने एक लिहाज से 0 से लेकर 11 तक एक अरे बनाई और उसके स्क्वायर्स वहाँ उसमें लिखे हुए हैं हर, यानी 0, फिर 1, फिर 4, फिर 9, और इस तरह। इस अरे पे आप अगर का एम था कि इस अरे के इंडेक्सेस, सर्टेन सिलेक्टेड इंडेक्सेस को आप पॉइंट करना चाहते हैं और उसका आप आउटपुट बनाना चाहते हैं या रिजल्ट देखना चाहते हैं कि इस अरे में इंडेक्स नंबर 1 पर क्या है, इंडेक्स नंबर 3 पे क्या है, इंडेक्स नंबर 8 पे क्या है, और आप उसे रीड करके उसका एक अलग आंसर बनाना, एक अलग अरे बनाना चाहते हैं। तो आप एक इंडेक्सेस का अरे बनाया आपने, अरे इसमें आपने रिपीट भी अलाउड है, 1, फिर 1, फिर 3, फिर 8, फिर 5, ये इंडेक्सेस का अरे। You can use A indexed by this I is an array. A indexed by an array of indexes. जिस तरह फंक्शन पूरे अरे पे इस्तेमाल होती है, इस तरह इवन इंडेक्स इस अरे के लिए आप एक अरे इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके मायने जैसे कि हमारे फंक्शंस के केस में है कि इस ए के इंडेक्स 1 पर क्या है, या 1 है, ए के इंडेक्स 1 पे 1, फिर ए के इंडेक्स 1 पे क्या है, 1, ए के इंडेक्स 3 पे क्या है, 9, ए के इंडेक्स 8 पे क्या है, 64, ए के इंडेक्स 5। तो जिन लोकेशंस पर आपने ए की पोजीशन से चीज़ें को रीड करके लिखना है वो ये है। तो ए आई कहने से आपको ये चीज़ मिल गई, आई आपने अपना बनाया, एंड इफ़ यू रिकॉल पी बॉक्स वॉज दिस, ये आपका पी बॉक्स होता था, ये आपके ओरिजिनल एरे होती थी। आफ्टर अप्लाइंग द पी बॉक्स आपकी ये आउटपुट थी, और उसमें आप देखना चाहते थे कि हर आउटपुट पर कौन सा इनपुट के इंडेक्स की वैल्यू को, इनपुट की वैल्यू को लिखें, और इसके लिए आप लूप शूप डालते थे। तो यू कुड जस्ट से कि आप पी बॉक्स लो, पी बॉक्स तो गिवन था, फिक्स था, और उसको उस इनपुट जो आपकी है जिस पे अप्लाई करना है ए आई कहो, और यू गेट द आंसर। इंटरेस्टिंग, ये वाला काम जो अभी आपने इंडेक्सेस का देखा, ये खाली एक डायमेंशन के बजाय 2 डायमेंशन में भी हो सकता है। अब यहाँ एक इंडेक्स आपने बनाया अरे ऑफ 2 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन मैट्रिक्स है, ये 2 डायमेंशन ए जे इंडेक्स अब आप 2 डायमेंशन। अगर आपका जो भी इंडेक्स का फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आप ए को पॉइंट करके लिख सकते हैं। मसलन आपने फिर वही कहा ए जे, वो ए आई आप इस्तेमाल कर चुके थे, वरना आप यहाँ आई भी लिख सकते, आई लिखते, वहाँ आपने एक अरे लिखी थी, उसके बजाय एक मैट्रिक्स लिखते, अब आपने 2 डायमेंशन मैट्रिक्स लिखी है, और आप कहते ए आई, तो यहाँ खाली उसमें फ़र्क नहीं है, इट इज सेम थिंग, मगर सिर्फ फ़र्क क्या है कि वहाँ आपके इंडेक्सेस की एक लीनियर अरे थी, यहाँ इंडेक्स की एक मैट्रिक्स है। इंडेक्स की कैन बी ए 2 डायमेंशनल थिंग और 3 डायमेंशनल थिंग। बेसिक वाला मे हैव ए डिफरेंट डायमेंशन, जैसे ए जो है वो एक लीनियर अरे है, 1 डायमेंशनल है, लेकिन अब आप इसको इंडेक्स करके इस पोजीशंस में जो इंडेक्स की फॉर्मेट है उसी में आपको आउटपुट मिल जाएगी, यानी आपने रीशेप भी कर लिया इस अरेंजमेंट में, और इन पोजीशंस के जो डाटा थे ए में उन्हें वहां लिख दिया। 2 काम हो गए, रीशेप्ड एंड इंडेक्स डाटा, जस्ट बाय दिस ए जे। क्या मतलब हुआ कि आपने कहा ए जे, तो इसने क्या कहा, इसने कहा पोजीशन 3,
इंडेक्स 3 पे, तो ए का जो इंडेक्स 3 पे डाटा है वो इस पोजीशन में आउटपुट पे लिखा गया, 9 था वहां। फिर ए के इंडेक्स 4 पे जो डाटा है जो कि 16 था वो यहाँ लिखा गया। फिर ए के 9 पे जो डाटा है 81 वो यहाँ लिखा। अब हमने इनको उस शक्ल में लिख लिया, जैसे यहाँ पे उस शक्ल में नहीं लिखा था, ये चीज थी, ये चीज उन पोजीशंस में हमने। इसी तरह ए की पोजीशन 7 पर जो डाटा था वो 49 था, वो यहाँ लिखा गया। तो अब आप देख रहे हैं ए एक बेशक लीनियर एरे था, उसके इंडेक्सेस के नंबर आपने दिए जैसे यहाँ दिए थे, मगर उनकी एक फॉर्मेट भी आपने अपनी बना ली 2 डायमेंशनल, उसने उन लोकेशंस पे लिख दिया, तो उस ए से ए जे करके आपको ये मिल गया। गुड। यानी अगर आपका पी बॉक्स आपका स्क्वायर शक्ल में था तो वो उस शक्ल में भी आंसर को अरेंज करके दे सकता है। इसका एक एप्लीकेशन उसने दिखाई है कि अगर पैलेट आप इमेज में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको ये वाली प्रॉपर्टी काम आ सकती है, जो कि हम बड़ा ऑफन करेंगे जब आप कलर्ड इमेजेस के बिग बंच को कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क में इस्तेमाल करोगे, तो दिस विल बी वन स्मॉल थिंग एट दैट टाइम दैट यू आर यूजिंग। कि पैलेट के ये फॉर्मेट्स हैं np.array कि वो 3 कलर्स पर बेस होते हैं, ब्लैक में तीनों जीरो, RGB, आर के लिए, जी के लिए, बी के लिए, तो ऑल जीरोज। रेड में ये वाली इसकी इंटेंसिटी हाईएस्ट है, बाकी जीरो हैं। प्योर रेड, प्योर ग्रीन ये वाला हाईएस्ट 255 है, प्योर ब्लू ये 255 है, और फिर ऑल कलर्स इन्हीं की वैल्यूज की कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट को एक में किसी में यहाँ पे 80, यहाँ पे 20, यहाँ पे 150, तो ये वाले कलर्स उस रेशो में मिलाकर वो कलर बना देंगे। तो ये कलर की RGB की अप्रोच है, उसकी ये मैट्रिक्स है। वाइट में ये सारे कलर्स R, G और B तीनों फुल इंटेंसिटी से मिले तो वाइट हो जाता है, सारे जीरो इंटेंसिटी पे हो तो ब्लैक होता है, और बाकी और इनके मिक्स। ये है पैलेट का एक फॉर्मेट जो यूज होती है। अब आपका ये इमेज है, ये इमेज के ये है, ईच वैल्यू कॉरस्पॉन्ड्स टू ए कलर इन द पैलेट। अब इस इमेज में जो ये वैल्यूज हैं वो हर एक कलर से उसकी कॉरस्पॉन्डेंस आपने इसकी देखनी है। तो आप कहोगे पैलेट ऑन द इमेज, इमेज के इंडेक्सेस पर, इमेज के इंडेक्सेस जो आपने दिया इमेज के लिए उस पर ये पैलेट अप्लाई करो इमेज की इस लोकेशंस पर। तो अब उसने यहाँ पर इस पैलेट के लिए ये इमेज का इंडेक्स सिलेक्शन इसने ये कर लिया, ये 0, तो यहाँ है ये 0 1 2 3 4, तो ये इसने 0 वाला सिलेक्ट कर लिया। ये फिर ये 1 वाला, ये 1 वाला इसने सिलेक्ट कर लिया। फिर ये 2 वाला पैलेट सिलेक्ट हो गया। फिर 0 वाला सिलेक्ट हुआ इस जगह, तो 0 वाला पैलेट फिर सिलेक्ट हो गया। ये तो जो इस ओके, तो उसके हर पोजीशन पर वो हो गया। और फिर ये पहली रो पर ये पैलेट से बन गया और दूसरी रो के मुताबिक ये बन गया, और ये टोटल चीज पैलेट इमेज इंडेक्स हो गई। अच्छा चले, ये इसी की एग्जाम्पल हैं, यू कैन लुक थ्रू देम एंड आस्क मी। यानी इसमें फिर उसने वो पार्शियल इंडेक्स वगैरह भी इस्तेमाल कर लिए हैं। आप इन एग्जाम्पल को देख सकते हो, आप समझ सकते हो, देख लीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लें इस केस में। एक इसमें सिर्फ और हमें छोटा सा पॉइंट आया कि यही रूल ये उसी के अगर एक टाइम हो और एक डाटा हो और हम उससे इंडेक्स करके इस्तेमाल करें तो हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन एग्जांपल, सो लुक एट दिस एग्जांपल, दे आर रिपीटेड एग्जांपल फॉर दिस कॉन्सेप्ट कि आप, ये आपके डाटा था, ये डाटा है,
और उस मुख्तलिफ टाइम पे आप उस डाटा को सैंपल करके एक फिल करना चाहते हैं, तो वो आपने जहाँ टाइम के सैंपल्स हैं उन पे इंडेक्स करके डाटा में से चीज़ें ली और फिल कर दी। अनदर एग्जांपल, यू लुक एट देम, और आप ये इसी के एग्जांपल। एक छोटी सी चीज़ खाली मैं इसमें ऐड करूं कि ये इंडेक्सिंग में बूलियन अरे भी इंडेक्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये एक और, जैसे इंडेक्स अभी नंबर इस्तेमाल हो रहे थे, इंटीजर, आप बूलियन, जैसे अगर आपने ये एक ए बनाया, फिर एक बी बूलियन का बना लिया, मे बी उसी ए से ही बना लिया, ए ग्रेटर देन 4 वाले केसेस के लिए बूलियन ये बी बनाया है कि यहाँ पर ये लेस होगा, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 4 तक लेस है तो ये फॉल्स, ये आगे के ट्रू। तो आपने एक और बूलियन का वो बनाया। अब आप अगर ए को इस बूलियन के हिसाब से इंडेक्स करें, अभी तो हम नंबर्स के हिसाब से इंडेक्स कर रहे थे, वो भी कर सकते हैं कि ए को पहले आपने ए की इस लोकेशन पर इस बी के बूलियन से इंडेक्स किया फॉल्स, तो वो एलिमेंट नहीं लिखा गया, वैनिश हो गया। यहां फॉल्स, वैनिश, फॉल्स, 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 ट्रू, इस लोकेशन का वो पास हुआ तो 5 ट्रू। तो इस तरह कॉम्बिनेशन ऑफ फॉल्स ट्रू इन दिस अरे बना के आप इंडेक्स करके आप उसमें से वो सिप आउट कर सकते हो वो सेट ऑफ थिंग्स बाय डिफाइनिंग बाइनरी नंबर एयर, एक बाइनरी नंबर बताया हुआ और उसमें से आपने सिप आउट कर ली चीजें। ठीक, तो ये हमारा दैट्स ऑल हमारे इस मैटर। ये एग्जांपल्स हैं जो हम आपको, हम जब करेंगे नेक्स्ट लेक्चर तो उसके बाद उसमें आपको चाहिए वो मैट प्लॉट लिब, वो पहले हम सीखेंगे, फिर आप इस एग्जाम को देख सकते हो। इट वाज जस्ट गिवन हियर, तो अभी इसकी ज़रूरत आपको नहीं है। तो हम अब नाउ यू कैन लुक एट ये ये आपके असाइनमेंट है, थर्ड असाइनमेंट, नेक्स्ट मंडे 2359 नमपाई की है। असाइनमेंट क्या है जो आप हम क्वेश्चन राइज कर रहे थे कि आपने असाइनमेंट 1 और 2 पहले आपने यूज किया है, उसमें खाली पाइथन उससे किए हैं। अब हम कहते हैं ये नमपाई बेस्ड प्रोग्रामिंग करें और देखें कोई फर्क पड़ा, कोई आसानी हुई, कोई मुश्किल पेश आई या नहीं। ठीक है, तो ये आप कर लें ये, और फिर देखें, कमेंट करें कि भाई कोई हुआ, कोई फायदा नुकसान। ये अभी उसके सिंपलर पार्ट्स हैं। अच्छा, फिर हम कह रहे हैं कि एक हमने कन्वोल्यूशन का काम दिया था असाइनमेंट 1 के, क्वेश्चन 2 जो था असाइनमेंट 1 का वो कन्वोल्यूशन था, 2D कन्वोल्यूशन। हम कह रहे हैं ओके डू द सेम नाउ, बट नाउ उसमें एक इमेज था। अब हम कहते हैं लेट्स इफ देयर आर 1000 इमेजेस, देयर इज अ वीडियो जिस पे आप कन्वोल्यूशन अप्लाई कर रहे हैं, उस वीडियो में 1000 इमेजेस है। तो सेम कन्वोल्यूशन अब आप पूरी वीडियो पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो आपका ये करना है, तो ये कीजिए। आप चाहें तो पहले जो आपने पिछला प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है पाइथन वाला, वो आपने एक इमेज पे किया था, उसे देखें कि अगर 1000 इमेज पे करना हो तो क्या होगा। और ऑफ कोर्स इमेज ग्रे स्केल है और उनके अंदर वैल्यूज का अप टू 256 है, बल्कि नहीं, मैंने तो शायद उसमें स्मॉल भी दिया, ओके जो भी है, ग्रे स्केल है और रैंडमली जनरेटेड है वैल्यूज। तो इस तरह के 1000 इमेजेस आप जनरेट करेंगे, उन्हें उन पे कन्वोल्यूशन अप्लाई करेंगे और उनके रिजल्ट्स निकालेंगे। आप उस पाइथन से भी देखें और फिर नमपाई से भी देखें, एंड इफ देन कमेंट के देखें क्या हुआ, आसानी हुई, मुश्किल हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक था, सो कमेंट कीजिए इसके बारे में। ओके, ऑलराइट, वी आर फिनिश विद टाइम, एनी क्वेश्चन? जी सर, ये असाइनमेंट जो है एक वीक तक का टाइम मिल सकता है, जब भी असाइनमेंट मिली जाए तो मतलब जिस डेट को दी जाए उसी के नेक्स्ट वीक के सेम डेट को वो असाइनमेंट सबमिट किया जाए, क्योंकि इस पे कुछ चीज़ें होती हैं, टाइम कम होता है ना, तो कुछ चीज़ें समटाइम्स ऐसी होती हैं कि उसको समझना होता है, तो नई चीज़ है हमारे लिए, तो उस पर थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। जी जी, तो हो सकता है, ये थोड़ा सा देखो हो सकता है, हमने आप देखो अभी हमने मंडे को बढ़ा, हमने लोकेट किया है इन असाइनमेंट्स को आइडियली टू जी द सर। पोजीशन कि आपको फुल वीकेंड मिले, असल में ये जी सर। पोजीशनिंग है। और आपका सारा मटेरियल हमने उस डोमेन का अच्छी तरह कवर भी किया हो, रिपीट भी किया हो। अच्छा, उसके बाद आप
कि ख्वाहिश के मुताबिक हमने ये भी कर दिया कि अगरचे मंडे हमारी नेक्स्ट क्लास होती है सबमिशन की, मगर आपको शायद आपने असाइनमेंट कर ली है, कोई कुछ फाइन चीज़ें अभी भी आपको करनी है, तो आपने डिस्कस कर ली, सोल्यूशन डिस्कस कर लिया हमसे मंडे मॉर्निंग को। हालांकि सबमिशन पहले हम कहते थे बिफोर द क्लास, हमने कहा अच्छा चले जी रात के 12 बजे तक कर दे। आपने जी। वो हिंट्स जो आपके आप असाइनमेंट कर चुके हो, पढ़ चुके हो, जी। मामला कर लिया है, और अब आपने वो हिंट दिए और फिर आपने सोल्यूशन को इम्प्रूव किया और 12 बजे तक सबमिट कर दिया। दैट इज इनफ। और मटेरियल की क्वांटिटी मैनेजेबल है। अभी जैसे इसमें हम क्या कह रहे हैं, आप बार बार सब कह रहे थे कि सर पाइथन से तो हो ही रहा है, तो क्या किस बास के ये कमेंट थे, बास पहले से ही नंपाई में कर चुके हैं चीजें और वो बेचैन है कि वो उसको टेस्ट करें, सम ऑफ यू, ठीक है। तो दोनों के सारे उसको लेके चलने, सबकी सेटिस्फेक्शन को मीट करने के लिए। और अब आपके पास, आप इस दफा असाइनमेंट भी हम आपको एक दिन पहले दे दी, वरना अक्सर हम फ्राइडे को देते हैं, तो आज थर्सडे को आज वेंसडे है, वेडनेसडे। वेंसडे, वो तो आपके पास वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, तो इट्स इनफ फॉर दिस स्मॉल असाइनमेंट। और जिसका क्या वो है कि द होल थिंग यू हैव ऑलरेडी डन इन पाइथन, अब हम कह रहे हैं ओके कैन यू डू इट बाय ए स्मार्टर वे, ओके चलें, इट्स इनफ, मोर देन इनफ, ओके, ऑलराइट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे क्वेश्चन नंबर 2 का पूछना है कि ये असाइनमेंट नंबर 1 लिखा है सॉल्व क्वेश्चन 2 और असाइनमेंट नंबर 1। असाइनमेंट नंबर 1 तो हमारी 1D नहीं थी सर। कन्वोल्यूशन हमारा किस में था? कन्वोल्यूशन जो असाइनमेंट 1 थी उसमें 1D था, जो असाइनमेंट 2 थी उसमें 2D था। ओके, 2D कन्वोल्यूशन, तो ये असाइनमेंट 2 में है। ओके ओके, हाँ जी असाइनमेंट 2 में। और सर एक और चीज पूछनी है, ये जो आपने ओके ओके, ऑन हैंडेड, अच्छा पहले मुझे ये बताना आता है, एक सेकंड। 2D कन्वोल्यूशन हम कह रहे हैं, तो ये मैंने मिस्टेक से अगर 1 लिखा है तो इसको करेक्ट कर दूंगा मैं, और आप भी कर लें कि मैं 2D कन्वोल्यूशन को हम डील करना चाहते हैं, तो दैट इज इन असाइनमेंट 2। ओके ठीक है। 2D कन्वोल्यूशन वाला प्रॉब्लम जो आपने सॉल्व किया था, एक इमेज पे हम चाहते हैं उसको आप 1000 इमेजेस पे करें। जी जी, और आगे पूछें, आप क्या कह रहे हैं? सर ये मैंने एक और क्वेश्चन है, ये जो आपने लिखा है 1000 इमेज, मतलब कि हमें ढेर सारी इमेज बनानी पड़ेंगी इसके लिए? जी, उसी तरह का जैसे एक इमेज पे आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व किया है ना, हाँ जी। इसी तरह के यू विल हैव 1000 इमेजेस। इट्स ए वीडियो विच हैज 1000 इमेजेस, और आप 2D कन्वोल्यूशन अब उस वीडियो पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके 1000 फ्रेम्स हैं वीडियो के जो इमेजेस की शक्ल में है, और आप उन पे कन्वोल्यूशन अप्लाई कर रहे हैं। सही है, ठीक है। एंड और ये लास्ट में, हाँ जी ये लास्ट में लिखा है कंपेयर करना है इन दोनों को, पाइथन को और नमपाई को। बिल्कुल। ठीक है। तो पहले ठीक है आप सर। पाइथन के जरिए से करोगे, सम ऑफ यू हैड अ फीलिंग कि यार पाइथन आती है तो क्या जी। जरूरत है नंपाई सीखें, तो आप पहले पाइथन से करोगे जिसको आप कर चुके हो, उसको एक्सटेंड करोगे, उस प्रॉब्लम का सही एक्सटेंड होगा। करके होगा, और फिर आप नंपाई से करोगे और देखोगे कोई फर्क पड़ा, कोई फायदा हुआ। वी वुड आल्सो लाइक टू नो कि क्या है, एंड देन दिस थिंग विल बी समथिंग जो आप न्यूरल नेटवर्क में जब कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क करते हो तो वहाँ ये कन्वोल्यूशन है जो आप रिपीटेडली यूज करते हो, और वेरी बिग डाटा, ये 1000 कुछ भी नहीं है, टेंस ऑफ थाउजेंड्स, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड, ठीक है। तो वी आर प्रिपेयरिंग यू फॉर दोज जो आपने आगे करना है। ओके ओके सर, ओके। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज।